Good morning, dear students. Dear students, in the previous class we have discussed about the accumulation of the variations during reproduction. We said that when the organism or when a child is being born, the child will have characteristics from both mother as well as father. And therefore, the basic outcome of the heredity process is that you get a basic body design which is same in all the individuals. If we talk about all humans, we all are having a similar basic body design which is very similar to our parents. But still we find certain characters that are different, or we can say that there are subtle changes which are observed between a child and its parent. So these variations accumulate over generations, and when they continue for a long time, they might be responsible for evolution. That is, development of a complete new species can also occur if these variations continue for a long time. So here, when we talk about heredity, we can say that the outcome of reproductive process is that individuals with same body design are observed, right? So what is the outcome of reproduction process? जब reproduction होता है तो उसके बाद जाइगोट बनता है, ये ग्रो होता है, एम्ब्रियो बनता है और धीरे धीरे क्या हो जाता है कि कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है. अगर ह्यूमंस की बात करें तो नेक्स्ट जनरेशन के जो इंडिविजुअल्स बनेंगे वो भी कैसे होंगे? दे विल बी हैविंग द सेम बेसिक बॉडी डिजाइन, राइट? दे आर गोइंग टू मींस हेरिडिटी मींस व्हाट? Inheriting the traits and characters of the previous generation, right? So here there will be inheritance of traits and characters from previous generation. This can be simply regarded as हेरिडिटी. जब हम बात करते हैं कि ये एक हेरिडिटी कैरेक्टर है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो ट्रेट्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट? ट्रेट्स और कैरेक्टर में क्या डिफरेंस होता है? जैसे कि हम बात करते हैं कि हाइट ऑफ अ पर्सन, तो हाइट ऑफ अ पर्सन एक कैरेक्टर है, बट हाइट कैन बी टॉल, हाइट कैन बी शॉर्ट, हाइट कैन बी मीडियम. ये क्या होता है? उसे ट्रेट्स कहते हैं. जैसे कि हम बोलते हैं कि कलर ऑफ द फ्लावर जो है वो एक कैरेक्टर है, पर कलर व्हाइट हो सकता है, पर्पल हो सकता है, पिंक हो सकता है, वो क्या हो जाता है? ट्रेट्स हो जाते हैं, राइट? सो हियर इट इज very important to understand that what is character and what are traits. So traits and the characters are going to be inherited from one generation to another, and this is known as the heredity. जब हम बात करते हैं inheritance की, तो inheritance मतलब you derive a character from your parents, right? अगर inheritance को समझना है तो हम एक्टिविटी 9.1 कंसिडर कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे हम एक्टिविटी 9.1 की अगर बात करें तो ये एक्टिविटी क्या समझाती है अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक? कि फॉर एग्जाम्पल यू आर इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, राइट? You are in a class of 50 students. Now in this 50 students, there will be some students who are having a fused earlobe. मतलब जो earlobe है वो स्किन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, और कई जगह पे कई स्टूडेंट्स में आप ये देखोगे कि they have a free earlobe, right? तो फ्यूज्ड ईयरलोब और फ्री ईयरलोब ये बहुत ही छोटा कैरेक्टर है,
पर ये कैरेक्टरिस्टिक आप सब में अगर ऑब्जर्व करोगे तो कहीं के पास फ्यूज है और कहीं के पास फ्री ईयरलोब है। तो हाउ इज दिस पॉसिबल? बिकॉज दिस कैरेक्टर इज बीइंग इनहेरिटेड फ्रॉम देयर parents, and therefore two different types of earlobes are observed. The same thing you can do in eye color, right? Some might have blue eye color, some might have black, and some might have brown. So you can calculate the percentage of students which have a different eye color. So what is that? That is a character that is getting inherited. So characters are inherited in the next generation from their parents. Characters are inherited in the next generation, and from where do they inherit? They inherit from their parents. Okay, so for example, some students in the class will show fused earlobe, whereas some show free earlobe. So what is that? It can happen that mother might have fused earlobe, father might have free earlobe, and you have inherited the character of fused earlobe. तो आप में तो दोनों ही कैरेक्टर्स आए होंगे, पर दोनों में से एक्सप्रेस क्या हुआ होगा? कोई भी एक। ये हम क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, समझिए, आपके फादर टॉल है और आपकी मदर शॉर्ट है। आप में जो जेनेटिक मटेरियल है वो 50% फादर का है और 50% मदर का है, पर ये 50-50% जो जेनेटिक मटेरियल आप में ट्रांसमिट हुआ है उसमें से भी एक्सप्रेस या आप में जो कैरेक्टर दिखने वाला है वो तो कोई एक ही है। या तो आप टॉल हो या तो आप शॉर्ट हो, राइट? शॉर्ट लाइक योर मदर, टॉल लाइक योर फादर। तो आप में एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल तो दोनों का आया है, पर दोनों में से एक्सप्रेस जो होता है वो कोई एक ही होता है। तो यही चीज को समझने के लिए, इसी कंसेप्ट को समझने के लिए एक फेमस रिसर्चर ने काम किया है, एंड हिज नेम इज ग्रेगर जोहान मेंडल। द नेम ऑफ द रिसर्चर, द साइंटिस्ट इज ग्रेगर जोहान मेंडल, and he has given a contribution to the inheritance topic. पहले एक और बार ये समझ लेते हैं क्या कहना चाहते हैं कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस का आउटकम क्या है, क्या होता है रिप्रोडक्शन से? तो एक नया ऑफस्प्रिंग बनता है जिसके कैरेक्टर सिमिलर है अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर से, राइट? मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स कैसे होने वाले हैं? सिमिलर। इसीलिए बॉडी डिजाइन जो है वो कैसा होने वाला है? सेम। Inheritance of characters and traits from previous generation. आगे की जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप में पास ऑन हुए हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हेरिडिटी। फॉर एग्जाम्पल, हैविंग अ कर्ली हेयर टेक्सचर इज अ हेरिडिटी कैरेक्टर यू हैव डिराइव्ड फ्रॉम योर मदर और फादर। ओके, तो ऐसे ट्रेट्स और कैरेक्टर्स जो हैं वो पेरेंट्स से किस में आते हैं? अपने चिल्ड्रन में आते हैं। थ्रू व्हाट? थ्रू द जेनेटिक मटेरियल। ओके, जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए, और ये डीएनए कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में होता है डीएनए। ओके, एक्टिविटी 9.1 ये समझाता है कि अगर आप कोई कैरेक्टर की बात कर रहे हो तो आप एक मास ले लो 50 स्टूडेंट्स का अपने क्लास में से, फिर आप उसी क्लास में देखो कि कितने स्टूडेंट्स के ईयरलोब यहाँ पे जॉइंट है, मतलब फ्यूज है, और कितने स्टूडेंट्स के ईयरलोब्स फ्री हैं। परसेंटेज निकाल लो कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स विद फ्री ईयरलोब्स एंड परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स विद द फ्यूज्ड ईयरलोब, एंड दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हिच कैरेक्टर इज मोर कॉमन, राइट? तो यहाँ पे और एक चीज हम आगे बढ़ने से पहले डिस्कस करते हैं कि हम मेंडल के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो मेंडल के कंट्रीब्यूशन के लिए सबसे पहले मेंडल्स
कंट्रीब्यूशन, राइट। पर मेंडल्स कंट्रीब्यूशन समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि मेंडल ने किस चीज पे, किस टॉपिक पे काम किया है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ दैट अ चाइल्ड गेट्स practically 50% of genetic material from father and 50% from mother, right? If I talk about myself, तो मेरे पास 50% जेनेटिक मटेरियल किसका है? मदर का, राइट? क्योंकि मदर क्या देती है? एग, राइट? फादर के पास क्या होता है? स्पर्म। तो एग और स्पर्म फ्यूज होते हैं, मतलब 50% जेनेटिक मटेरियल मदर का है और 50% जेनेटिक मटेरियल फादर का है, और दोनों का जेनेटिक मटेरियल मिला के मुझ में है 100% जेनेटिक मटेरियल। तो मेरे पास जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें मैटरनल कैरेक्टर्स भी हैं और पैटर्नल कैरेक्टर्स भी होंगे। सो इट शोज बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल कैरेक्टर्स। व्हाट डज इट शो? बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल कैरेक्टर्स। बट आर बोथ कैरेक्टर्स एक्सप्रेस्ड एट द सेम टाइम? ऐसा नहीं होगा कि मदर की आई ब्लू है और फादर की आईज ब्लैक है, तो आपकी एक आई ब्लू और एक आई ब्लैक, ऐसा होता है? नहीं होता, राइट? वी आइदर हैव ब्लू आईज और वी हैव ब्लैक आईज और वी हैव एन इंटरमीडिएट शेड, बट वी डोंट हैव वन आई ब्लू एंड वन आई ब्लैक। सिमिलरली आइदर हमारी हाइट फादर की तरह टॉल है या तो मदर की तरह मीडियम है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी हाइट उन दोनों से कुछ अलग ही है, राइट? ऐसा नहीं होता। दिस मीन्स व्हाट? दैट दो 50-50% जेनेटिक मटेरियल दोनों में से मिल रहा है, पर दोनों में से एक्सप्रेस किसका जेनेटिक मटेरियल होता है? किसी एक का ही जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे एक्सप्रेस होने वाला है। सो द जेनेटिक मटेरियल of anyone is going to be expressed, and this was explained by Mendel. Who has explained this concept? Explained by Mendel. हम बात कर रहे हैं कि मेंडल जो है, ग्रेगर जोहान मेंडल, उन्होंने ये इनहेरिटेंस और हेरिडिटी के टॉपिक में काफी कंट्रीब्यूशन दिया है। एक्चुअली कह सकते हैं कि उन्हीं का सबसे पहला कंट्रीब्यूशन है टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू हिम वो क्या कह रहे हैं कि आप जो बने हो तो आपके पास 50% जेनेटिक मटेरियल मदर का है और 50% जेनेटिक मटेरियल फादर का है। दोनों के जेनेटिक मटेरियल को मिला के आपका जेनेटिक मटेरियल बना है, पर आप में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है वो दोनों में से किसी एक का है, राइट? आइदर मदर्स कोई कैरेक्टर डोमिनेंट है या तो कोई फादर का कैरेक्टर है जो एक्सप्रेस होने वाला है। तो यही कंसेप्ट को समझाया था कि कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। दैट वाज बीन एक्सप्लेन्ड बाय द साइंटिस्ट ग्रेगर जोहान मेंडल। ही हैज एक्सप्लेन्ड दिस गिविंग हिज स्टडी ऑन, he has studied on garden pea. He has studied on the plant garden pea, जिसे साइंटिफिकली पाइसम सैटिवम कहा जाता है। तो गार्डन पी पे उन्होंने काम किया था और गार्डन पी के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने जो कंसिडर किए थे, कैरेक्टर्स कंसिडर्ड were tall and dwarf, मतलब short, right? White flowers and violet flowers, wrinkled seeds, पहले मैं राउंड लिख देती हूँ, राउंड सीड्स और wrinkled seeds।
राइट। क्या किया था उन्होंने? गार्डन पी प्लांट कंसिडर किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, और इस प्लांट को कंसिडर करने के बाद उन्होंने ऐसे 3 वैरायटीज लिए जिसमें एक प्लांट टॉल था और एक ड्वार्फ था। तो टॉल और ड्वार्फ में क्या एक्सप्रेस होता है वो देखना था, व्हाइट फ्लावर्स और वायोलेट फ्लावर्स में कौन सा एक्सप्रेस होता है वो देखना है, और राउंड सीड्स और व्रिंकल सीड्स, व्रिंकल मतलब जिनके ऊपर से पानी जब निकल जाता है तो कैसे डिहाइड्रेट हो जाते हैं, वैसे व्रिंकल सीड्स हो जाते हैं। तो ये तीनों तरह के प्लांट उन्होंने एक्सपेरिमेंट में कंसीडर किए थे। वैसे तो उन्होंने 7 कैरेक्टर्स कंसीडर किए थे, बट अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, अप टू योर नॉलेज, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर 3 सच कैरेक्टर्स। तो आगे देखते हैं कि उन्होंने फिर ये 3 प्लांट्स लेके क्या एक्सपेरिमेंट किया, दैट वी विल स्टडी जस्ट नाउ।